yesterday we have done director circle. क्या क्वेश्चन आई थी इसकी? एक्स स्क्वायर x square plus y square is equal to a square plus b square. Yes, है ना? This is the equation of a director circle. So it is the circle. If you have an ellipse, so it will be a circle such that all the pair of tangents are at right angle. Are intersecting at a right angle. So locus of all these, इनका जो locus आएगा, that will be a director circle. This equation will be this. Then we find equation of normal to the circle. So we have find the parametric coordinates. It was a cos phi, b sin phi. Phi is the parameter. So equation was coming ax sec phi minus by cosec phi is equal to a square minus b square. So ये समझ में आ गया था how we are getting yesterday when student was asking how it is coming. So in the proof I explained है ना, you can write tan phi as sin phi upon cos phi, then arranging the terms you will be getting this term. I hope everything is clear up to this. So let us take one problem. Example 1, page 175. Prove that the line Lx plus my plus n is equal to 0 is normal to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if a square upon l square plus b square upon m square is equal to a square minus b square whole square upon n square. Okay. Or you can say it is the condition of tangency that this line will be normal. ये भी कह सकते हैं. जैसे हमने टेंजेंट के लिए निकाली थी, टेंजेंट के केस में क्या आया था कि सी स्क्वायर शुड इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. If y is equal to mx plus c, if line in this form, this will be tangent if this condition holds. Now if line is given in this form, then it will be normal if this condition holds. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मालूम है. सेम थिंग वी विल डू. I will write the equation of normal and then I will compare the coefficient of like terms from this equation and this equation. है ना? Same procedure which we have done several times. So what I can do here? We know equation of normal for this ellipse ax sec phi जो कल निकाला था लास्ट में, by cosec phi is equal to a square minus b square, है ना? Now if lx plus my plus n is equal to 0 is normal to ellipse, इसको ellipse को मैं नंबर 1 कर दूंगा, 2 1, then क्या होगा? Both will be representing the same line. So what I will do? Comparing the coefficient of like terms. It is the process always whenever we want to show some line is normal, some line is tangent. Comparing the coefficients of like we get. So here coefficient of x is a sec phi, here it is L. So I will be having a sec phi upon L is equal to coefficient of y is b cosec phi with minus sign minus b cosec phi upon m is equal to constant term a square minus b square and here plus n, or you can take right hand side, so minus n. So this will be a square minus b square upon minus n. Now you can take first third ratio and then second third ratio. First and third ratio if I will take, it will give you
a sec phi upon L is equal to a square minus b square upon minus n. So here I can find by arranging terms, I will find a value of cos phi. ठीक है, क्योंकि इसे हम बाद में ऐड करके ऐड कर दो, तो मैं cos phi की वैल्यू अगर चाहता हूँ तो क्या हुआ, इधर ले जाओगे तो 1 upon sec phi, 1 upon sec phi will become cos phi, and take this side is here, so minus an upon L times a square minus b square. Similarly, if I will take now second and third ratio, it will give you sin phi is equal to, ना अब ये ले लेंगे हम, तो 1 upon cosec phi sin phi, take it here, so plus bn upon m times a square minus b square. Now what I will do is squaring and adding, so sin square phi plus cos square phi, so this will equal to a square n square, पहले किसी भी टर्म को लिख लो, doesn't matter, L square a square minus b square whole square plus b square n square upon m square a square minus b square whole square. ये चीज आपका 1 बन जाएगी, है ना, this is your 1, and here you can take n square upon a square plus b square whole square common, so you have a square upon L square plus b square upon m square, है ना. प्रूफ में देखिए हमें क्या चाहिए था, प्रूफ में ये टर्म चाहिए, तो ये टर्म तो आ गया आपके पास, इसे उठा के इधर ले जाइए, बस प्रूफ इज डन. सर इन डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर विल कम, हाँ माइनस है, ओके माइनस, करेक्ट, तो a स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, टेक दिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था. इस टाइप से सिंपल प्रूफ्स हैं, यू कैन डू. Here it is minus, minus. So 2 more problems are there which I am leaving you as a home assignment. You will do in your home assignment work and submit. Page 182 पर है and example 3 है, फिर आगे page 194 पे. ये 2 problems हैं, एक ऑक्सिलरी सर्कल की प्रॉब्लम है और एक आपकी नॉर्मल की प्रॉब्लम है. इसे आप करेंगे अपने आप. कोई प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं होती है, आपस में डिस्कशन करिएगा पहले कि हाउ टू सॉल्व इट. डिस्कस करेंगे तो उससे आपको आपस में फायदा मिलेगा. ठीक है, ग्रुप बना के स्टडी करें. ग्रुप स्टडी से बहुत फायदा मिलता है. यू शुड ऑलवेज हैव सम गुड स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट्स. तो उसमें ये होगा कि आप जब कोई चीज कर रहे हैं, डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती है. नॉलेज शेयरिंग इज वेरी गुड थिंग. जो आपको आता है दूसरे को बताइए, दूसरे से सीखिए कुछ चीज. नेक्स्ट आर्टिकल, इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये हाइपरबोला, है ना, द लास्ट कोनिक, बिकॉज वी हैव 3 कोनिक्स, सर्किल 3 का सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. 4 कोनिक्स हमने पढ़े. इनफैक्ट एलिप्स और सर्किल तो मैंने बताया कि सर्किल इज द लिमिटिंग केस ऑफ एलिप्स, तो यू कैन कंसीडर दैट एज सेम. तो मेनली आपके थे पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. सो द लास्ट इज चैप्टर 9 है आपका ये, द हाइपरबोला. So you have written 11. The hyperbola, yes. तो चैप्टर 11 लिख दिया. चैप्टर 11. हाँ 11 ही है ये, चैप्टर 11 ही तो है. आपने बोला बाय मिस बोला था आपने 9. अच्छा, तो हो सकता है वो मैंने मिरर इमेज बोल दी इसकी है. चैप्टर 11 है द हाइपरबोला. ओके, सो डेफिनेशन एज आई टोल्ड यू, you know कि whenever we are defining conics, we are defining by using eccentricity. तो हाइपरबोला के लिए क्या होगा eccentricity, you know क्या होती है, E greater than 1. yes. So a conic section, yes, a conic section in which the eccentricity, इसे हम E से डिनोट करते हैं, is greater than 1. greater than 1 है यूनिटी, है ना. It's called hyperbola, a hyperbola.
आगे अगर हायर ज्योमेट्रीज में आप जाएंगे, आप लोग तो नहीं जाएंगे, 5th सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, उसमें हाइपरबोला में भी हाइपरबोला 1 शीट, हाइपरबोला 2 शीट्स, डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं इट इज हाइपरबोला 2 शीट्स, जो आपने पढ़ा अभी तक। तो आई कैन फाइंड अ इक्वेशन, आपको क्वेश्चन मालूम है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। एलिप्स से प्लस होता है, हाइपरबोला में यू हैव माइनस साइन, so that is a standard hyperbola having two axes, transverse axis and conjugate axis. Center we consider it at the origin. So if I will plot the figure, you know, अगर हम इसकी फिगर प्लॉट करें तो I can take two axes and two curves, है ना। कर्व अगर हम बनाए यहाँ पे हाफ कर्व बनाना है, तो यू कैन टेक लाइक, हाथ से प्लॉट करना पड़ेगा इस तरीके से। चलिए ठीक है। And here if I will prove it, you know what we have to take, we have to consider a point P and we have to take a focus here which is S and this you have to take अरे सर जी ये क्या बना रहा है, बच्चे बिगड़ जाएंगे इससे, अरे बच्चे बिगड़ जाएंगे जी, देखो क्या बना रहा है। साकिब अहमद क्या कह रहे हैं आप? साकिब अहमद कुछ कह रहे हैं आप? साकिब अहमद बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्या बना रहा है? बच्चे बिगड़ जाएंगे सर, क्या बना रहा है जी? अच्छा, बच्चे बिगड़ रहा है सर। मुझे तो आप पहले से बिगड़े हुए लग रहा है। आप इसी क्लास में हैं या ऐड होगा बीच में? कौन है भैया? हैं? सर एक बाहर का बंदा हर क्लास में आके परेशान कर रहा है ऐसे ही। ये साकिब अहमद? नहीं सर, वो अलग अलग नाम से आ रहा है, स्टैट में भी थे और कैलकुलस की क्लास में भी था। तो कौन लड़का है ये? पता नहीं सर। पता नहीं सर। क्या अजीब बात है, आपकी क्लास में डिस्टरबेंस कर रहा है, आपको पता नहीं, आपने मालूम नहीं करा कौन है ये? अलग अलग नाम से आ रहा है सर वो बाहर का बंदा अलग अलग नाम चेंज करके आ रहा है कोई। तो ये ग्रुप का लिंक तो मैं सिर्फ आप लोगों को शेयर करता हूँ, तो ये कैसे आ जाता है? पता नहीं सर। अभी रिमूव हो गया या इसमें है? हो गया है सर। मुझे इसकी डिटेल चाहिए, आप लोगों में से कोई मुझे इसकी डिटेल ला के देगा, ठीक है सर? वो हर वक्त अलग अलग नाम से इंटर करता है, पता ही नहीं चलता है वो कौन है सर। यार तुम 20-25 लोगों को एक लड़के को नहीं पहचान सकते? अजीब बात है सर आई डोंट, सर वी डोंट थिंक सर यहीं से किसी। सो दिस इज आई एम टेकिंग पॉइंट, ये a, 0 आई एम राइटिंग, बट आई विल फाइंड इट, देन इट विल कम। अभी तो वी आर जस्ट टेकिंग अ फिगर लाइक दिस, सपोज। म्यूट कर दो भाई माइक। सही है। So we will be taking, suppose this is your 2 axis and it is the center, any arbitrary center I am taking. अभी हम प्रूफ करेंगे तो a, 0 आएगा। Suppose when I will consider it is your x axis, generally तो हम इसे x axis ही ले लेते हैं, x and y. So this is the concept, you know, for any conic section actually we have PS is equal to EPM, है ना। अब उसमें e greater than 1 है तो it will give you hyperbola. So these two axes, this is called transverse axis.
transverse axis, and this y-axis जो perpendicular to this axis, this is called conjugate axis. Conjugate axis. And we have directrix, so two directrix will be there. One directrix, suppose I am taking this, and one directrix will be same distance पे होगी फिगर, क्योंकि ये रफ बना इसलिए इट इज कमिंग लाइक दिस. And now I can construct how the equation will become. These 2 points I am taking A and A dash on the, so this I will take A. नोटेशन आपकी सब सेम वैसे ही जैसे आपने एलिप्स में करी थी, उसमें भी आपका A and A dash था. And this is C. Now where this directrix cutting this, suppose this point is Z and this is your Z dash. Okay, so now you know that here we have A dash. A dash जो है आपके पास यहाँ पर कितना होता है, let us suppose this is 2A. ये 2A है. E is greater than 1. So if E greater than 1, then what will happen? And let S be the focus. S को हम कहते हैं focus. So it has two focus. One S is, and one will be here some S dash. So it has foci in fact. So अगर S be the focus है, that this line is the directrix, and this your तो जो हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं वो किस पे ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे लेते हैं एक्चुअली, है ना. सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. तो PM जो होगा वो ये पॉइंट आएगा. दिस इज योर M, not this point. Okay, not this, it will be this. तो डायरेक्ट्रिक्स पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो द डिस्टेंस PS will equal to always EPM. ये फॉर्मूला होता है इसका. So here E is greater than 1, so what will happen? 2 points है A and A dash, which divides this SZ. SZ को divide करेंगे internally and externally in the ratio E is to 1. Since E greater than 1, there exist 2 points A and A dash, which divides SZ internally and externally. In the ratio E is to 1. So C is the center. So what is by the definition, SA will equal to how much? EAZ. हम जब प्रूव करते हैं तो we always take SA is equal to EAZ, है ना. This distance SA, this equal to E times of EZ, and SA dash is equal to EZA dash. SA dash, this distance equal to E times A, this ZA dash. So now from this I can prove your equation of the hyperbola. So how? Now SA plus SA dash, इससे अगर हम ऐड कर दें तो it will be E of AZ plus E times of ZA dash. अब SA को I can write SA I can write SC minus AC, and SA dash I can write SA dash, this distance, this I can write SC plus CA dash. This will equal to E times
AZ plus ZA dash. Now if you solve it, so it is twice of SC minus AC and plus minus AC plus A dash C. So ये आपका A dash C और ये कितना बन जाएगा? A dash C इक्वल टू AC है क्या? A dash C दिस इक्वल टू AC है ना, क्योंकि ये आपका C इज द सेंटर, तो इसको मैं CA लिख सकता हूँ. So plus AC, this will be cancelled out. CA dash is equal to CA, and this is your E times and AZ plus ZA dash. This is 2A. ये हमने assume किया हुआ है कि let us suppose this is AA dash is 2A. AZ plus Z dash A. This will be 2A. So you got SC is equal to AE. अब SC क्या था आपके पास? ये डिस्टेंस फोकस है ना, तो दिस डिस्टेंस इज AE. यहां तक की डिस्टेंस AE आ गई आपके पास. अगर मैं C को ओरिजिन लूंगा तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे? AE, 0. तो वन थिंग यू गॉट योर डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस. सर AZ प्लस ZA डैश किसके बराबर है? A डैश प्लस ये है AZ प्लस ZA डैश. देखिए AZ कहाँ है? AZ है ना, ये डिस्टेंस, एंड प्लस Z डैश A, ये डिस्टेंस. तो ये किसके इक्वल है? ये डिस्टेंस इसके इक्वल है ना, तो ये कितना हो गया पूरा? A डैश हो गया. ये सर 2A हो जाएगा. ये 2A हो गया है, से हम 2A लिखा. ऑल्सो SA डैश माइनस SA. अब हम इसका माइनस करते हैं. अभी मैंने प्लस किया था, अब अगर माइनस करूंगा तो इससे आपके पास निकल के आएगा E टाइम्स ZA डैश माइनस AZ है ना, इससे माइनस कर दीजिए. अब SA डैश माइनस SA इज हाउ मच? देखो SA डैश, दिस इज योर SA डैश, दिस होल माइनस SA, तो कितना बचा? ये AA डैश रह गया. तो दिस विल बी AA डैश इज इक्वल टू E टाइम्स AA डैश माइनस ट्वाइस AZ ना. ZA डैश को मैंने लिख लिया यहाँ पर सॉल्व करके. तो ZA डैश इज हाउ मच? ZA डैश इज, आई कैन राइट ZZ डैश प्लस A डैश Z डैश. तो ये A डैश यहाँ आ जाएगा, ये इसमें ऐड हो गया. अब इट इज योर 2A इज इक्वल टू E टाइम्स दिस इज ट्वाइस ऑफ CZ A डैश माइनस 2AZ. देख लीजिए A डैश, दिस होल लाइन 2A है ना, एंड माइनस 2AZ. तो 2AZ कितना था? AZ का ट्वाइस, तो AZ प्लस A डैश Z डैश ये था. तो इट विल बी हाउ मच? ट्वाइस ऑफ CZ होगा, है ना. पूरा होल A डैश से हमने क्या माइनस कर दिया है? ये माइनस कर दिया है, और ये. तो क्या बचा आपके पास? ये लाइन बची. ये कितनी है? इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ CZ है ना, क्योंकि ये इक्वल है इसके. तो दिस आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ CZ. 2 से 2 कैंसिल, तो यू गॉट CZ इज इक्वल टू A अपॉन E. तो CZ क्या चीज है आपके पास? एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये, तो ये क्या आ गया? A अपॉन E. तो अगर ये A अपॉन E है तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी? X इज इक्वल टू A अपॉन E, है ना. तो हम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, लेकिन ये कब होगा? जब C इज द ओरिजिन, है ना. नाउ इफ C इज द ओरिजिन एंड CS is the x-axis and the perpendicular line ये जो अगर हमने CY ली थी, CY is the y-axis ना. अभी हमने जो सॉल्व किया इन जनरल सॉल्व किया, लेकिन जब मैं C को ओरिजिन ले लूंगा तो जो आपके पास डिस्टेंसेस आएंगे यही कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके उसके. तो अगर C ओरिजिन है, CS is the x-axis, then ultimately the perpendicular line जो CY है, this will be the y-axis.
ओके, सो 10 फोकस जो आपके पास आएगा एस, ये बन जाएगा ए ई कॉमा 0, है ना। अभी ये ए ई डिस्टेंस आई थी, लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस बनेगा तो फाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। सिमिलरली जो हमने एक्स निकाला था ये बन जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी 2 डायरेक्ट्रिक्स है, इसको अगर मैं कह दूं सपोज ये z, इसका नाम हम कर ले रहे हैं z के, यहाँ पे के लग दे रहा हूँ, पॉजिटिव साइड वाली z के इज x इज इक्वल टू a अपॉन e। अब मैं पॉइंट P को अगर कुछ xy मान लूँ, सपोज P इज अ पॉइंट x, y, है ना। सो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो गए m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a अपॉन e कॉमा y, क्योंकि ये y है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपने यहाँ पे, है ना। तो अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो जो y है इसका भी कोऑर्डिनेट y होगा, y इज नॉट चेंजिंग, ये y एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट लेंगे a कॉमा e y, और दिस इज x कॉमा y a e कॉमा 0। तो नाउ आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, है ना, बिकॉज सो वी नो PS इज इक्वल टू E PM, where PM is the perpendicular। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। अब PS स्क्वायर इज हाउ मच, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो PS इज हाउ मच, देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो अंडर रूट नहीं लेंगे हम। तो यू गॉट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर एंड PM is how much, x minus a upon e whole square plus y minus y coordinate is 0। So you have only x minus a upon e whole square, है ना, क्योंकि y दोनों y है, पैरेलल टू y आपके पास परपेंड, ये क्या है y और ये भी y है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, x माइनस ए आई होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई, तो 0, तो वो 0 करेक्ट कटेगा। इसे अगर आप सॉल्व कर लें, आप देखो ओपन कर दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2a एक्स अपॉन ई। तो यहाँ पर इफ यू सी दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा 2ax, तो यू विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर टर्म अगर मैं अरेंज करूं तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर इसे लेफ्ट लाऊंगा तो माइनस ई स्क्वायर, है ना, दिस टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ नहीं है, यू हैव ओनली सिंगल टर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यू हैव ए स्क्वायर और इस टर्म को भी इधर ले जाए उठा के, तो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इसे डिवाइड कर दें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए, तो यू हैव एक्स स्क्वायर अपॉन, इस पूरे से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस टर्म को मैं अगर बी स्क्वायर मान लूँ तो दिस इम्प्लाइज डेट, माइनस साइन तो नहीं आ रहा है कहीं, हाँ यहाँ पर हम एक 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, ई स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ई जो है ग्रेटर देन 1 है ना, तो हम इसे पॉजिटिव लिखना चाहते हैं क्योंकि अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर अंडर रूट लिया और ये डिफरेंस आपका क्या आएगा लेस देन 0, तो अंडर रूट जो है वो क्या आएगा आपके पास निगेटिव का, इमेजनरी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ई स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस साइन बाहर ले दो, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन, तो बी स्क्वायर से नहीं मानेंगे, बी स्क्वायर मानेंगे हम ई स्क्वायर माइनस 1, इसे बी स्क्वायर लिखूंगा, तो दिस विल बिकम, so this is the equation of hyperbola where b square is, ध्यान रखना क्या है आपका a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि जब b की वैल्यू लेंगे आप तो वो आएगा a ऑफ अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव होता तो इट विल बिकम इमेजिनरी, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा फॉर द हाइपरबोला। ओके, इसका थोड़ा बैक कीजिएगा। यस, एक और
ओके सर। ठीक है, ये हमने बस ज्योमेट्री थोड़ी सी करी है टर्म्स को। जब भी हमें कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है, हमें एक फोकस चाहिए होगा, एक ध्यान रखना है, और एक चाहिए होगी डायरेक्ट्रिक्स। ये दो चीजें हम निकाल के लाते हैं, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फिर उससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में रख के, बस। ठीक है, चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई आपको, तो आपको मालूम है कि क्या होता है, कि ये आपकी क्योंकि डेफिनेशन यही होती है कि अगर ये पी एस है, ये पी एम है, तो दिस इक्वल टू, तो पी एम के लिए यू नीड डायरेक्ट्रिक्स, पी एस के लिए यू नीड फोकस। यही हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना होगा। Here you can find this thing, focal, the differences between focus distances, that means ps dash minus ps is equal to 2a for the hyperbola. The difference है यहाँ पे, अगर आपको याद हो इलिप्स के लिए मैंने प्रूफ किया था ps plus ps dash is equal to 2a for ellipse। ये इलिप्स के लिए हमने रिलेशन प्रूफ करी थी। हाइपरबोला के लिए क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस। वहां पर सम था, यहाँ डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ना। पी एस डैश क्या है आपके पास, ये देखिए, यही तो है पी एस डैश। कौन सी डिस्टेंस है, ये दिस, और ये पी एस है, तो पी एस डैश माइनस पी एस, क्योंकि पी एस डैश बड़ा है तो इसलिए मैंने पहले पी एस डैश लिखा है। द डिफरेंसेस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी भी है, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ये 2a डिस्टेंस हमने ट्रांसवर्स एक्सिस की ली थी, है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। वहां पे आपके इक्वल टू द मेजर, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस इक्वल टू द मेजर एक्सिस 2a। वहां पे 2a आपका इलिप्स का मेजर एक्सिस था। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। देन वी हैव अ स्पेशल पैराबोला, हाइपरबोला। आपने नाम सुना होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, पता है किसी को? अगर a इज इक्वल टू b हो जाए, अ हाइपरबोला इन विच for which a is equal to b, this is called rectangular hyperbola। ओके, तो अगर a इज इक्वल टू b है तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी आपके पास? फॉर्मूला था b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। नाउ √2 a पे कितना जाएगा, कैंसिल आउट, √2, है ना। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, √2। इक्वेशन अगर आप रखेंगे तो सॉल्व करके देख सकते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, ये भी ए हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी। और एक और होती है इसकी इक्वेशन, ये भी होती है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अगर आप इसे प्लॉट करेंगे इसको, इस नंबर को, तो ये इस तरीके से आता है, इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। टच नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट क्या है, अभी डिपेंड करेगा पॉजिटिव नेगेटिव। अगर दोनों आपके पास ये है तो इस तरीके से आएगी। तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आप